So start أخلق أنا. मेरे ख्याल से स्टार्ट ले लेंगे सही है. Yes, Yes, sir. sir, we'll start learning. स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ये मन आप यस सर नो सर क्या करें सही है, बाकी तो बस बैठे होते हैं. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So we are discussing HPLC, ठीक है, and we discussed its instrumentation and then some column properties, ठीक है. Today we are discussing method development. So actually all we are interested is in the resolution of mixtures, ठीक है. So for that mixtures we have to select a stationary phase column and the mobile phase and other factors in such a manner that the mixture is resolved completely within a short period of time. Okay? So that is our actual goal. Now, for that purpose, we have to develop a method. And method development, that is a very cumbersome and a very lengthy process. Okay? However, by working on the desktop and considering different theoretical aspects may significantly reduce the trial and error experiments. Okay, so means that, for example, you are having a, a particular active pharmaceutical ingredient, for example, paracetamol, and you have to detect that or to quantify or analyze that on HPLC. So you must develop the method. Now, the method development, we will be discussing different aspects of the method development. So method development in case of uh, GC, that is relatively simple because there is only a temperature gradient that is to be adjusted. We uh, change the temperature over a certain gradient, and then we see we run certain trial and error experiments, and we see whether the mixture is resolved or not, or the peak that we are looking for is achieved or not. But the case of a liquid chromatography, that is a bit more complex because in the liquid chromatography, the analytes are the mixtures that are dissolved in the mobile phase, and it also interact with the stationary phase. So the mobile phase in case of GC, that is having no effect because that is just a carrier gas, for example, helium or the like, nitrogen, hydrogen. But in case of liquid chromatography, the analyte that is also interacting with the liquid or the mobile phase. So in that case, the mobile phase is making a significant difference. How it will interact with the column or with the stationary phase. Okay? So there are three types of parameters that must be considered: the that of the analyte, that of the mobile phase, and that of the stationary phase. Okay? So all these three should be carefully blended such that to achieve
the resolution completely within a minimum period of time. Okay, so we are discussing some aspects of these parameters. Okay, actually, the essence of each PLC is in the method development, that how you are proficient in developing methods for the resolution of different components. Okay. So method development tends to be more complex in the liquid chromatography than in the GC, because in a liquid mobile phase, the sample components interact with both the stationary phase and the mobile phase. In contrast, in GC, the mobile phase simply carries the sample components through the stationary phase and makes no contribution to the separation process. That is, in GC, separations are not significantly affected by whether the mobile phase is helium, nitrogen, or hydrogen. In marked contrast, the success of a partition chromatographic separation is often critically dependent on whether the mobile phase is, for example, acetonitrile, hexane, or dioxane. Now, the first component is the column selection. Okay, so the column must be carefully selected depending on the analyzed. Now, successful chromatography is with interactive mobile phases require a proper balance of the intermolecular forces among the three active participants in separation process: the solute, the mobile phase, and the stationary phase. So these intermolecular forces are described qualitatively in terms of relative polarity of each of the three reactants. Okay? And if you remember that in the initial lectures I told you that the pharmacists are an analytical pharmacist that must be capable to see the molecule just in a three-dimensional space, and there are only then different aspects that can be combined. Okay? So the polarities of the various analytical functions are described qualitatively in terms of सर आपकी आवाज बहुत कट रही है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर जी। हाँ अदा कम लगी कट शे वाला का सर सेकंड जी फ्लाइट तनी जमा क्लास स्टार्ट दो। अच्छा जी, तो इसमें मैंने कौन सा पॉइंट डिस्कस किया था? सर पहले वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला। अच्छा जी, तो now these intermolecular forces are described qualitatively in terms of relative polarity of each of the three reactants, ठीक है। मतलब है कि जो polarities है वो from the totally non-polar in hexane to the totally polar water molecule, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में फॉर एग्जांपल in hexane है, उससे ज़्यादा पोलरिटी ईथर्स की है, फिर उससे ज़्यादा पोलरिटी एस्टर्स की है, फिर कीटोन्स की, फिर अल्डिहाइड्स की, एमाइड्स की, एमीन्स की और फिर अल्कोहल्स की, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है फिर वो वाटर की है, ठीक है। वाटर इज द मोर पोलर देन कंपाउंड्स कंटेनिंग एनी ऑफ द प्रीसीडिंग functional groups. Is it okay or not? यस सर। Now, often in choosing a column for a partition chromatographic separation, the polarity of the stationary phase is matched roughly with that of the analyte. ठीक है। Now we are having two approaches. ठीक है, एक अप्रोच ये है कि आप जो एनालाइट है उसकी जो पोलरिटी है उसको आप मैच कर दें विद दैट ऑफ द स्टेशनरी फेज, ठीक है। और एक अप्रोच ये है कि आप उसको मैच कर दें विद दैट ऑफ द मोबाइल फेज, ठीक है। सो दीज आर टू अप्रोचेस। अच्छा अप्रोच जो है वो ये है कि आप पोलरिटी ऑफ द मोबाइल फेज को जो है मैच कर दे, पोलरिटी ऑफ द एनालाइट को आप मैच कर दे विद दैट ऑफ द स्टेशनरी फेज, ठीक है। कि वो जो है स्टेशनरी फेज की पोलरिटी के करीब करीब हो, ठीक है। तो उस सूरत में जो है फिर रिटेंशन और जो है सेपरेशन वो ज़्यादा अच्छी तरीके से पॉसिबल है, ठीक है। दिस प्रोसीजर इज जनरली मोर सक्सेसफुल देन वन इन विच द पोलरिटीज ऑफ द सॉल्यूट and mobile phases are matched but different from that of the stationary phase. Now here the stationary phase often cannot compete successfully for the same component. Retention time then becomes too short for the practical applications. ठीक है? At the other extreme, of course, is a situation where the polarity of the solute and stationary phase are too much alike and totally different from that of the mobile phase. Here the retention times become inordinately long. मतलब ये है कि अगर स्टेशनरी फेज और एनालाइट की पोलरिटी जो है वो मोबाइल फेज से बिल्कुल डिफरेंट हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इन सेपरेशन और वो भी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। सो इन समरी then the polarities of the solute, mobile phase and stationary phase must be carefully blended if good partition chromatographic separations are to be realized in a reasonable time, ठीक है। Now unfortunately theories of mobile phase and stationary phase interactions with any given set of components are imperfect, ठीक है। यानी ऐसी कोई थंब रूल्स नहीं है क्लियर कट कि आप बैठ के जो है उससे आप कोई जो है एक परफेक्ट कंडीशन को डायरेक्टली निकाल सके, ठीक है। एंड एट बेस्ट द यूज कैन ओनली नैरो द चॉइस ऑफ स्टेशनरी फेज टू ए जनरल टाइप, ठीक है। मतलब है कि आप जो है प्रिलिमिनरी वर्क जब आप करेंगे तो इसमें आप कंडीशंस को नैरो डाउन करेंगे, ठीक है। तो उस नैरो डाउन का फ़ायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले ट्रायल एंड एरर में 20-30 एक्सपेरिमेंट करने थे तो वो जो है आप फॉर एग्जांपल 5-10 तक जो है वो आप उसको रिड्यूस कर लेंगे, ठीक है। So having made this choice, some trial and error experiments must be performed in which chromatograms are obtained with various mobile phases until a satisfactory separation is realized, ठीक है। इस पीएलसी में जो सबसे जो है एक्साइटिंग फेज होता है वो तब होता है कि जब आप मेथड डेवलप कर रहे हो और आपके पास पीक आ जाए, ठीक है। यू गेट ए पीक एट ए ऑप्टिमम रिटेंशन टाइम, ठीक है, and that is totally resolved. So the high degree of correlation between mobile phase composition and retention factors, however, allows prediction of approximate retention times from only a few trial and error experiments. There are certain factors as we are discussing
कि उसको अगर आप केयरफुली सेलेक्ट कर दें और कंसिडर कर दें तो आप जो है एक्सपेरिमेंट को आप नैरो डाउन कर सकते हैं इन ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। सो इफ resolution of all of the components of a mixture proved to be impossible, a different type of column may have to be chosen. अगर within a preset condition अगर आप उसको रिजॉल्व न कर सके तो इसका मतलब है कि फिर आपने कॉलम को चेंज करना है, ठीक है। ना मोबाइल फेस को आप कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। मोबाइल फेस सिलेक्शन इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, दैट आर कंसिडर्ड, ठीक है। स्लाइड्स को देखने की बजाय आप मुझे सुन ले, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स। एक है एन। व्हाट इज एन, एमन? एन क्या है पहले हमने डिस्कस किया है। हेलो सर याद नहीं। याद नहीं, अच्छा। तो ये जो है नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स है, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था, जितना नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स जो है वो बढ़ेंगे उतना ही सेपरेशन और रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये तो कॉलम की अपनी एक इंटरनल इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। वी शुड सेलेक्ट ए कॉलम दैट इज हैविंग मैक्सिमम एन, ठीक है। फिर हमारे पास फैक्टर के है, ठीक है। के इज द रिटेंशन फैक्टर, ठीक है। रिटेंशन फैक्टर जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन जो है सिलेक्शन ऑफ द मोबाइल फेस, ठीक है। के क्या होता है? के जो है इट इज एक्चुअली ए डायमेंशनलेस और यूनिटलेस जो है पैरामीटर जो आपको ये शो करता है कि आपका जो इन लाइट है, ठीक है, वो विद रिस्पेक्ट टू इल्यूजन ऑफ द मोबाइल फेस कितने टाइम तक स्टेशनरी फेज में रिटेन होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, या इसकी वैल्यू जो है वो यूनिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यानी इसकी जो वैल्यूज है दैट रेंज फ्रॉम 0 और फ्रॉम 1 to 30, ठीक है। तो अगर ये 1 है या 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पर्टिकुलर एनालाइट ये मोबाइल फेस के साथ ही इल्यूट होता है डायरेक्टली, ठीक है। और इसी तरह जितना जितना इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7 उतना ही इट विल लेग बिहाइंड देन द मोबाइल फेस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जितना के वैल्यू बढ़ेगा उतना ही रिटेंशन टाइम जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि के वैल्यू जो है दैट इज प्रेजेंट फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स, ठीक है, और डिफरेंट मोबाइल फेजेस के लिए जो है वो अवेलेबल होता है इन द लिटरेचर, ठीक है। तो के वैल्यू जो है वो हम सेलेक्ट करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर एनालाइट अंडर कंसिडरेशन दैट इज बिटवीन अराउंड 2 to 10, ठीक है, 2 से 10 के दरमियान हो, सो दैट इज ए सूटेबल वन, ठीक है। 10 से अगर बढ़ता है तो फिर उसकी रिटेंशन टाइम एक्सेसिवली बढ़ेगी, और अगर 2 से कम होता है तो इसका मतलब है कि बिल रिजोल्यूशन होगी ही नहीं, बल्कि वो जो है एनालाइट के साथ वो मोबाइल फेस के साथ ही वो इल्यूट हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाय चेंजिंग के और बाय सेलेक्टिंग के आप जो है इसको पीक रिजोल्यूशन को जो है आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये के जो है ये मुख्तलिफ तरह के पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक। आप इसको देख लें, ये जो टेबल है, ठीक है, इस टेबल में आप देख लें वी आर हैविंग डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक मोबाइल फेजेस। फ्लोरोअल्केन, साइक्लोहेक्सेन है, इनहेक्सेन, ब्यूटेन या टिल्ड वाटर, ठीक है जी। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स, ठीक है। अब ये उसके जो है डिफरेंट पैरामीटर्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विस्कोसिटी है, बॉइलिंग पॉइंट है, पोलरिटी इंडेक्स है, इल्यूएंट स्ट्रेंथ है, ठीक है जी। अब ये डिफरेंट पैरामीटर जो है दैट में बी यूज्ड और दैट में बी रिक्वायर्ड फॉर कंसिडरेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, ठीक है जी। अब इसमें ये जो दो चीजें हैं, ठीक है, ये 2 चीजें दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। एक है हमारे पास पोलरिटी इंडेक्स और दूसरा है हमारे पास इल्यूएंट स्ट्रेंथ, ठीक है जी। समझ आ रही है या नहीं? आवाज आ रही है या नहीं? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है जी। पोलरिटी इंडेक्स जो है ये आप देख ले, ये टोटली नॉन पोलर इज -2 और जो वाटर है तो वो है 10। इसका मतलब है कि ये जितना आप पोलरिटी बढ़ाएंगे
तो पोलरिटी इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। ठीक है जी। और इसी तरह आपका इल्यूएंट स्ट्रेंथ है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, वो भी जो है दैट इंक्रीज फ्रॉम द नॉन पोलर टू द पोलर। ठीक है जी। तो आपका जो रिटेंशन फैक्टर के है, ठीक है, इट इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन दीज टू फैक्टर्स। ठीक है। तो बाय केयरफुली सिलेक्टिंग द मोबाइल फेज आप इस के को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि वो आपके पास कौन से, यानी 2 से लेके 10 तक आप किस जो है फैक्टर पे, किस यूनिट पे आप इसको जो है, इसकी वैल्यू पे आप इसको फिक्स करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है एल्फा। ठीक है। एल्फा इज द रिटेंशन फैक्टर। ठीक है। एल्फा की जरूरत हमें तब पड़ती है, मोस्ट ऑफ द टाइम के को कंसिडर करने से हमारा मसला हल हो जाता है। ठीक है। बट if still we are having 2 peaks and that are not completely resolved or they are fusing, तो फिर हम जाएंगे अगले स्टेप की तरफ एंड दैट इज द रिटेंशन फैक्टर अल्फा। ठीक है। रिटेंशन फैक्टर अल्फा जो है ये हमारे पास मोबाइल फेज जो सिस्टम है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर हमारे पास विद इन ए पर्टिकुलर मोबाइल फेज सिस्टम हमने जिसके लिए के सेलेक्ट कर दिया, उसमें हमारे पास रिजोल्यूशन हो गई, मगर फॉर एग्जांपल एनी 2 पीक्स जो है उसकी रिजोल्यूशन अच्छी नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि के वैल्यू तो सही है, मगर उस 2 इनलाइट पीक्स के लिए जो है फिर ये सही, वो जो है कोई और फैक्टर को आप चेंज करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि विदाउट चेंजिंग के, ठीक है, आप क्या करते हैं कि आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स को चेंज कर लेते हैं इन सच ए मैनर दैट द के रिमेन द सेम आर क्लोज एंड द अल्फा इज सेपरेटेड। अल्फा का मतलब ये कि एनी 2 कंपोनेंट ए और बी जो है उसकी सिलेक्टिविटी टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज कितनी है। ठीक है। तो एक की डेफिनेटली ज्यादा होगी, दूसरे की कम होगी। तो उसके बेस पे जो है आप ऐसे मोबाइल फेज को सेलेक्ट करेंगे कि आपका जो सेलेक्टिविटी है वो किसी एक फैक्टर के लिए बढ़ जाए। ठीक है। तो जब वो बढ़ जाएगा तो फिर एक ज्यादा रिटर्न होगा, दूसरा कम रिटर्न होगा, एंड इन दिस मैनर द पीक्स विल बी रिजॉल्व। ठीक है। नाउ यू कैन रीड दिस स्लाइड्स। ठीक है। सर ये वाला पॉइंट रिपीट करें, अल्फा वाला जी, अल्फा वाला पॉइंट रिपीट करें। देखो के हमने सेलेक्ट कर लिया केयरफुली। ठीक है जी। हमने मोबाइल रन कर दिया, मोबाइल फेज या हमने एक्सपेरिमेंट रन कर लिया, हमारे पास कंपोनेंट सेपरेट हो गए। ठीक है। जब कंपोनेंट सेपरेट हो गए तो फॉर एग्जांपल उसमें एनी 2 पीक्स ऐसी है कि वो आपस में कोलैप्स्ड है या वो कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, यू विल गो टू द फैक्टर अल्फा। ठीक है। अल्फा जो है दैट इज ए फैक्टर दैट इज डिटरमिनिंग कि आपकी जो any 2 components in the mixture है, how much they are showing selectivity towards the stationary phase। तो definitely एक थोड़ा ज्यादा शो करेगा, दूसरा कम करेगा, although that will be similar or close। ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, by changing the mobile phase system। ठीक है। यानी आप मोबाइल फेज को चेंज करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर वो लेट सपोज मिथानॉल है तो आप उसको चेंज करेंगे, लेट सपोज डायक्सेन को या किसी और को आपने चेंज कर दिया। ठीक है। सो जब आपने उसको चेंज कर दिया, बट दैट चेंज भी शुड बी इन सच ए मैनर दैट द के रिमेन्स द सेम, यानी उस सिस्टम का जो के होगा वो भी यही होगा एक्सेप्ट दैट द सिस्टम विल बी चेंज। ठीक है। तो उस सूरत में आपके जो 2 पीक्स है वो भी सेपरेट हो जाएंगे। ये जो प्रीसीडिंग डिस्कशन है ये आप पढ़ लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा और भी। ठीक। Now in the LC the retention factor K is experimentally the most easily manipulated of the 3 because of the strong dependence of this constant on the composition of the mobile phase. Now a retention factor much less than unity means that the solute emerges from the column at a time near to that of the void time, यानी बिल्कुल एक ही फेज में निकलना है। ठीक है। Now when the retention factor is larger than perhaps 20 to 30, illusion time become inordinately long। ये मैंने डिस्कस कर दिया। ठीक है। Now for optimal performance K should be in the ideal range between 2 and 10। For complex mixtures however this range must often be expanded to perhaps 0.5 to 20 to provide time for peaks of all of the components to appear। ठीक है। Now sometimes adjustment of K alone is not sufficient to produce individual peaks with no overlap। ठीक है। Now in this case we must resort to variation in the selectivity factor alpha। The selectivity factor of a column for the 2 molecules solutes A and B is defined as alpha is equal to Kb by
Ka, ठीक है, where Kb is the distribution constant for the more strongly retained species B and Ka is the constant for the less strongly held or more rapidly eluted species. So according to this definition, alpha is always greater than unity, ठीक है, मतलब ये greater होगी always और ये कम होगी, ठीक है. So here again the simplest way of bringing about changes in the alpha is by altering the mobile phase composition, taking care however to keep K within the reasonable range, ठीक है. Alternatively, A can be changed by choosing a different column packing, ठीक है, यानी आप column packing को change कर लें, मगर वो तो अक्सर columns are expensive, तो आप जो है मोबाइल फेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है. अच्छा जी, नाउ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट स्ट्रेंथ एंड रिटेंशन फैक्टर्स, ठीक है, ये कैसे चेंज करता है, ये दो जो मैंने आपको टेबल में दिखा दिया, ठीक है. सो सॉल्वेंट्स कैन इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद सॉल्यूट्स. सॉल्वेंट्स दैट इंटरेक्ट स्ट्रांगली विद सॉल्यूट्स आर ऑफन टर्म्ड स्ट्रांग सॉल्वेंट्स, ठीक है. स्ट्रांग सॉल्वेंट्स आर ऑफन बट नॉट ऑलवेज पोलर सॉल्वेंट्स. Now solvents strength depends on the nature of the analyte and stationary phase, ठीक है जी. So several indices have been developed for quantitatively describing the polarities of the solvent. The most useful of these for partition chromatography is the polarity index P naught, ठीक है, ये वाला, ठीक है, P prime, sorry P naught नहीं P prime, ठीक है, which was developed by the sender. This parameter is based on the solubility measurements for the substance in question in 3 solvents, ठीक है. यानी इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इस तरह कैलकुलेट किया जाता है कि जो सॉल्वेंट है, जो एनालाइट है, उसको 3 सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है. डायोक्सेन जो कि एक लो डाइपोल प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है. नाइट्रोमीथेन जो हाई डाइपोल प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और इथाइल अल्कोहल है जो कि हाई डाइपोल प्रोटॉन डोनर है. तो इसके बेस पे जो है इसकी जो पैरामीटर है वो डेवलप की जाती है, ठीक है. Now the polarity is a numerical measure, index is a numerical measure of the relative polarity of the various solvents, ठीक है, कि उसकी relative polarity क्या है, ठीक है जी. Table 28-2 lists polarity indices and other properties for a number of solvents used in the partition chromatography, ठीक है. Note that the polarity index varies from 10.2 for highly polar water to -2 for highly non-polar fluoroalkanes, ठीक है. Now any desired polarity index between these limits can be achieved by mixing 2 appropriate solvents, ठीक है. आप किसी भी polarity index को within this, ठीक है, मतलब है कि ये जो है आप देख लें, ये -2 से लेके 10.2 तक, इस रेंज में आप किसी भी, यानी 4.0 और 4.1 के दरमियान भी बाकी चीज़ें, ठीक है, इसमें आप किसी भी सतह पे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद दिस फार्मूला, ठीक है. P prime A B is equal to, ये जो है gamma A P prime A and gamma B P prime B, ठीक है. We PA and PB are the polarity indices of the 2 solvents and ये जो gamma है that are the volumes, इसको क्या कहते हैं, sigma, sorry not gamma, these are sigmas, ठीक है. Sigma A and sigma B are the volume fractions of the solvent A and B in terms of percentages, ठीक है. तो ये percentages terms है और ये polarity index है, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास किसी भी सॉल्वेंट सिस्टम का जो है आप उसका जो है पोलैरिटी इंडेक्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है, जो कि आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, सही है. नाउ often in reverse phase separations we use a solvent mixture containing water and a polar organic solvent. यानी उसमें आप क्या करते हैं कि वाटर को आप लेते हैं और वाटर के साथ आप फिर बाकी चीज़ जो फ्रैक्शन है उसको कम ज़्यादा करते हैं, तो चूँकि वाटर इजीली अवेलेबल है तो जो दूसरा सॉल्वेंट है वो कम से कम यूज होता है, ठीक है. द रिटेंशन फैक्टर कैन देन बी मैनिपुलेटेड बाय वेरिंग द वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है, कि मसलन 70% है, 50% है, 80% है, कम ज़्यादा, ठीक है, ठीक है जी. नाउ इफेक्ट ऑफ मोबाइल फेजेस जो सेलेक्टिविटी पे है, ठीक है. In many cases, adjusting K to a suitable level is all that is needed to give a satisfactory separation. जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि K को अगर आप 2 से 10 के दरमियान ले आए तो आपका काम जो है वो हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगी, ठीक है जी. So when 2 bands still overlap, however, the selectivity factor alpha for the 2 species must be made larger. Now such a change can be brought about most conveniently by changing the chemical nature of the mobile phase while holding the predetermined value of K more or less the same. इसका मतलब ये है कि आप अगर इसको देख ले, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1.6 लेट सपोज ये कार्बन टेट्राक्लोराइड की है पोलैरिटी इंडेक्स, ठीक है, मगर ये 1.6 जो है आप किसी भी दो को जो है एज पर फार्मूला कंबाइन करके हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी.
तो मतलब ये है कि अगर आपने के वैल्यू को एडजस्ट कर लिया तो उसके बाद आप उस सिस्टम को चेंज करके किसी और 2 सॉल्वेंट्स को लेके आप वही सेम पोलैरिटी इंडेक्स हासिल कर सकते हैं, और या फिर जो है सेलेक्टिविटी, ठीक है। तो इससे आपके पास सेपरेशन जो है वो हो जाएगी, ठीक है जी। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। सर सॉल्वेंट को चेंज करने से फिर अल्फा वाला फैक्टर एडजस्ट होगा ना? बिल्कुल जी। तो इसका मतलब ये हुआ आज की डिस्कशन का कि आप मेथड डेवलपमेंट जब आप करेंगे तो आप 3 चीज़ों को कंसिडर करेंगे, एक स्टेशनरी फेज की पोलैरिटी को, दूसरा आप एनालाइट की पोलैरिटी जो आपको जो है यानी जिस पे आपने सेपरेशन करनी है, और तीसरा जो है सॉल्वेंट है। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि इन सब चीज़ों को लोग आप जमा करके आप ये खुलासा कर सकते हैं कि यू मस्ट केयरफुली सेलेक्ट द कॉलम, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ योर जो है जो आपका मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसको आप तलाश कर रहे हैं, जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं। और दूसरा मोबाइल फेज को आपने केयरफुली एडजस्ट करना है, ठीक है। तो मोबाइल फेज में आपने जो एडजस्ट करना है उसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है कि आप उसकी जो रिटेंशन फैक्टर क्या है उसको आप एप्रोप्रिएट रख दें, और दूसरा अगर उससे काम न बना, जो कि मेजॉरिटी केस में उससे बन जाता है, कि आप कौन सा फ्रैक्शन यूज़ करेंगे। तो फिर उसके बाद आप अल्फा की तरफ जाते हैं बाय चेंजिंग द सॉल्वेंट सिस्टम, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी बिल्कुल, रीवा ने बताया था नंबर ऑफ प्लेट्स। असल में मैं स्क्रीन लेट से पढ़ता हूँ मैसेजेस। जी, एनी क्वेश्चन?